annual Eid Namaz congregation since 1978 had started in the Red Road. Earlier to that used to happen in the Shahid Minar. But this year in 2026, it has found a new location. The location is the Brigade Parade Ground. At this point, I'm standing here at the Brigade Parade Ground of Kolkata, and you can see the preparation for the annual Eid Namaz congregation that has started in the Brigade Parade Ground. With hundreds of mics been installed all over the parade ground, with two tents being set up here in the Brigade Parade Ground, we can see where men will be coming tomorrow morning and will be joining the morning namaz here and singing in chorus along with the imams. There are two stages, one is this side and the other is that side. There is no lack from the Khilafat committee, who has been an organizer of this event since the beginning of it. Now, this has an age-old tradition and history attached to the Khilafat movement. From there, to the branch that Khilafat movement had in Bengal, it started from then when the freedom fighters used to come to the Shahid Minar and read out the namaz to the people. And from there, this history, this age-old tradition has carried out. From 1978 to 2025, this namaz used to be read in the Red Road area. But to the new directives coming into place in 2026, the annual namaz congregation has found its new place or venue to be the Brigade Parade Ground. Tomorrow at 8:30 a.m. in the morning, there will be hundreds of men who would be sitting here to read the namaz together along with the imams and the other officials who would lead it. But this comes in after the new directive by the Shubhendu Sarkar, the BJP-led government in Bengal, who has said that no namaz according to the 1950 Act will be allowed to read in the road by blocking the road and holding the traffic, causing problem to other people. So this time the chosen location is the Brigade Parade Ground, where also in few months ago we had witnessed the Lokho Conte Gita Path. The Gita Path or movement or the reading was observed here in the Brigade Parade Ground. So at the point when this namaz tomorrow of the Bakr Eid holds a religious importance, it also holds a political importance given to the new directive and the opposition's allegation that has been coming all the way. This rule has been for the first time being instilled in West Bengal after the newly elected government takes its shape. इस वक्त हम जुड़ गए हैं कलकत्ता खिलाफत कमेटी का जो जॉइंट सेक्रेटरी है मलिक इशाक जी के साथ। नमस्ते आपको और टाइम्स नाउ पे स्वागत है। जो पहली सवाल है मेरा वो है कि इसका जो हिस्ट्री है, जब से आप लोग ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, इसका जो हिस्ट्री है रेड रोड से शुरू करके कब शुरू हुआ ये नमाज, कब से आप लोग ऑर्गेनाइज करें, इसका जो महत्वपूर्ण है रेड रोड का बोल दीजिए, ब्रिगेड ग्राउंड का बोल दीजिए, ये अगर आप थोड़ा बताते हैं हम लोग का ऑडियंस को। देखिए, ये इसका जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री खिलाफत मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। जब 1920 में जब इसका फाउंडेशन हुआ, जब जलियांवाला बाग का जब मैटर हुआ, तो उस टाइम ये खिलाफत मूवमेंट का जो वजूद आया, जो मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर अली और गांधी जी के तहत हुआ, तो उसी मूवमेंट से जो है ये खिलाफत कमेटी जुड़ा हुआ है। तो इसका एक शाख जो है, जिसका ब्रांच जो है बंगाल में था, तो ये बंगाल में जो था, तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो हैं वो भी नमाज ये पढ़ाते थे, तो उनको इमामुल हिंद एक तो मतलब दिया गया था कि वो इमामुल हिंद मतलब इमाम है वो, तो वो इसी मतलब नमाज से हुआ था। और ये नमाज हुआ करता था शहीद मीनार में, जिसको मोनूमेंट आज कहा जाता धर्मतल्ला में, वहाँ होता था। तो 1920 से होता था। तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद से पहले जो फ्रीडम्स ऑफ फाइटर थे वो सब वो यहाँ आके नमाज पढ़ाया करते थे। और 1920 से लेके 1977 तक शहीद मीनार में रहा। और 78 में पानी होने की वजह से मार्ट में बहुत ज़्यादा मतलब मैदान में बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से भर जाता था, बच्चों को और इन लोगों को तकलीफ होता था। तो उस टाइम जो है रेड रोड में 1978 में शिफ्ट किया गया। और शिफ्ट करने के बाद 1978 से लेकर आज तक जो है वो चल रहा था। पिछले ईद तक जो है वहाँ पर नमाज पढ़ा गया। जी, इस साल आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है कि इधर करेंगे, सरकार के ये नया डायरेक्टिव के बाद ही आप लोग ये डिसीजन पे आए हैं, कोई तकलीफ हो रही है या लग रहा है कि ये और ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से होगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो परमिशन आर्मी को दिए थे, तो आर्मी की तरफ से परमिशन मिल ही गया था। फिर उसके बाद हमें कलकत्ता पुलिस की तरफ से बुला के बोला गया कि अभी जो नया आइन आया है, मतलब पुराना ही आइन है ना 1950 का 1950 का, तो उस आइन की वजह से रोड के ऊपर नमाज पढ़ना, ये करना वो करना जो है, मतलब शायद 1950 का एक्ट मुझे नहीं समझ मालूम नहीं मुझे ठीक से, लेकिन मालूम चला कि रोड के ऊपर नमाज वगैरह नहीं पढ़ने का है, आप लोग जो है मैदान में पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। तो हम लोगों से ऑप्शन पूछा
पूछा गया कि कहाँ पर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो हम बोले सर आप लोगों की तरफ से अगर कोई डायरेक्शन आता जो आप लोग हम लोगों को डायरेक्शन देते हैं तो उसी डायरेक्शन के ऊपर हम लोग जो है अपना नमाज पढ़ते हैं। तो बोले ठीक है आपका कोई प्रपोजल है, तो हम लोग मतलब पुलिस और हम लोगों की तरफ से सब मिल के प्रपोजल यही निकालें कि अगर मैदान में पढ़ना है तो शहीद मैदान में पढ़ लिया जाए या नहीं तो ब्रिगेड में पढ़ लिया जाए। तो हम लोगों की इस बात को जो है गवर्नमेंट भी जो है वो तालमेल थे कि ठीक है मैदान में पढ़ना है तो मैदान ब्रिगेड को आप लोग ले लीजिए। तो फिर ब्रिगेड के लिए हम लोगों ने फिर जो है ब्रिगेड के लिए फिर हम लोगों ने आर्मी वगैरह को ब्रिगेड के लिए आर्मी में परमिशन वगैरह किया और करने के बाद ब्रिगेड में परमिशन लेने के बाद आर्मी की तरफ से हम लोगों को परमिशन मिला और उसके बाद फिर कलकत्ता पुलिस की तरफ से भी हम लोगों को परमिशन मिला कि ऐसा है कि आप लोग मैदान में आइए। तो फिर मैदान हम लोग विजिट किए जॉइंट सीपी साहब के साथ और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और डिपार्टमेंट के साथ। तो हम लोगों को पसंद आया जगह बहुत सफिशिएंट जगह है। बस यही है कि जब पानी हो जाएगा, बारिश हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो यहाँ अगर पानी या जल वगैरह जमा होने से थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। पर ये जो रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ा जाता था, बहुत लोगों की तरफ से कंप्लेन भी था कि प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ा जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार थोड़ा प्रॉब्लम कम रहेगा और ट्रैफिक का मुद्दा भी कम रहेगा और डिसिप्लिन तरीके से होगा ये थोड़ा? हाँ देखिए ऐसा है कि रेड रोड के अगल बगल में काफी बड़ा रोड था, तो इसी वजह से पिछले में दफा ये किया कि चलो ठीक है रेड रोड में पढ़ लिया जा रहा है। उस टाइम मतलब कहा जाए कि पॉपुलेशन भी कम था, अभी पॉपुलेशन बढ़ गया है, गाड़ी बढ़ गया है। तो अगर इसकी वजह से अगर रोड में अगर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। गवर्नमेंट के गाइडलाइन और पुलिस के गाइडलाइन का जो रहा वो हम लोग एक्सेप्ट करते हुए अपना ब्रिगेड में आ गए और ब्रिगेड भी सफिशिएंट जगह है। बस बारिश होने से प्रॉब्लम आएगा और ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं, अच्छा खुला जगह है, हम लोगों को ठीक है, अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे कि हम लोग ने सुना कि ब्रिगेड ग्राउंड जैसे कि नया जो डायरेक्टिव आया है गवर्नमेंट के पास से, उस डायरेक्टिव को फॉलो करते हुए ब्रिगेड ग्राउंड में इस बार पढ़ा जाएगा नमाज और कोई दिक्कत नहीं है, इधर शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। और पिछले साल तक जो रेड रोड में था थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ट्रैफिक की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, बट इस बार से बहुत अच्छे से होगा। और यही बताया जा रहा है कि ब्रिगेड ग्राउंड भी बहुत सुंदर जगह है नमाज पढ़ने के लिए। मैं रीता चैटर्जी, मेरा कैमरा पर्सन अर्नब सिंह रॉय के साथ कलकत्ता से टाइम्स नाउ के लिए।